Hi everyone, welcome back. A quick recap and then we'll move forward. So first of all, ये हमारा नेफ्रॉन है for a clear picture. I'm sure you guys know. ये Bowman's capsule है and I'm reading it off from here. ठीक है? If you cannot follow along तो इसे पढ़ लेना. ठीक है? ये Bowman's capsule है. Then you have your proximal convoluted tubule और ये उसके epithelial cells हैं जो हमने मैग्नीफाई करके दिखाए हुए हैं. Then you have descending limb. ठीक है? इससे बस बोल दो descending limb. ठीक है? तो descending limb of loop of Henle. Then you have your ascending limb, that's divided into two portions. One is the thin ascending limb of loop of Henle, and then you have thick ascending limb of loop of Henle. So first comes thin and then comes thick. Okay, so Bowman's capsule, proximal convoluted tubule, descending limb of loop of Henle, and then thin ascending limb of loop of Henle, thick ascending limb of loop of Henle. Then you have distal convoluted tubule, जिसमें पहले early distal convoluted tubule आता है, फिर late distal convoluted tubule, and then you have your collecting tubule. Collecting tubule में you have cortical collecting tubule and then the medullary collecting tubule. Now when you talk about proximal convoluted tubule, इसके special features क्या है? इसके ये हैं कि इसका brush border है luminal surface पर, फिर it has a basolateral surface और basolateral surface पे there will be a lot of basal striations representing a lot of mitochondria क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा mitochondria चाहिए because that produces a lot of ATP and that is necessary for the sodium potassium ATPase pump. Then the other thing about this is कि ये जो cells हैं PCD these are cuboidal in nature and then they have tight junctions between the cells and bear in mind these are tight junctions not gap junctions. Gap junctions तो heart में होते हैं ना myocardial cells में, और ये tight junctions these are not watertight. अगर watertight होते तो ये water जो है जो paracellularly जा रहा है वो तो जा ही ना पाता. तो these are just there to ensure कि यहाँ के proteins यहाँ ना आए और यहाँ वाले proteins यहाँ ना आए, and the second thing to keep these cells together, ठीक है, intact together. Now बाकी हमें बातें बताएं कि सोडियम पोटेशियम एटीपी पंप बेसोलेटरल सरफेस पर होता है. यू नो अबाउट प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो डायरेक्टली एटीपी की एनर्जी देन एंड देयर बनाता है. फॉर एग्जांपल एटीपीएस पंप. सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो एनर्जी यूज करता है ऑफ अनदर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट. फॉर एग्जांपल जो ग्लूकोज और सोडियम को ट्रांसपोर्ट, अमीनो एसिड और सोडियम को ट्रांसपोर्ट, ये सारे इसमें जो सोडियम है ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रही होती है क्योंकि it follows its concentration gradient, so it is transported down its concentration gradient. लेकिन ग्लूकोज अगेंस्ट its concentration gradient होता है और इसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है? It uses energy from the gradient of sodium which is made by ATPase pump. तो indirectly इसकी एनर्जी ATPase pump से आ रही है. जो सोडियम का ग्रेडियंट यहाँ जनरेट हुआ है ना, इस ग्रेडियंट से मतलब यहाँ सोडियम बहुत ज़्यादा है और यहाँ जैसे सोडियम पुअर, तो ये भी ग्रेडियंट है. इसकी वजह से ये सोडियम की ट्रांसपोर्टेशन होती है. और ये वाला वैसे ग्रेडियंट किस तरह बना था? बिकॉज ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप. इनडायरेक्टली दिस इज डिपेंडेंट ऑन दैट एनर्जी ओनली. है, दीज ऑल थिंग्स यू ऑलरेडी नो. ये सारी बातें हैं कि एक तो इसका केमिकल ग्रेडियंट भी है और दूसरा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भी है, राइट. बाकी बातें बताने की देयर इज नो पॉइंट ऑफ रीकैपिंग ऑल ऑफ दैट. एंड ये आपको पता है दिस इज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. क्लोराइड की भी, अमीनो एसिड की भी, ग्लूकोज को भी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. जबकि और ये को ट्रांसपोर्ट है, दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, राइट. लेकिन ये वाला दिस इज काउंटर ट्रांसपोर्ट ऑल्सो नोन एज एंटीपोर्ट. जो को ट्रांसपोर्ट है सिम्पोर्ट है बिकॉज दे बोथ ट्रांसपोर्टिंग इन द सेम डायरेक्शन लेकिन डिफरेंट इनका मैकेनिज्म है. ये जो है दिस इज एंटीपोर्टर क्योंकि एक अंदर आ रहा है और प्रोटॉन्स आर बीइंग सिक्रीटेड आउट. सो प्रोटॉन्स की सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है लेकिन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और जो सोडियम है उसकी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रही है, ठीक है. नाउ एंड ऑल्सो ये जो है ना दिस इज प्रेजेंट इन द लेटर पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल कॉन्वेक्टिव ट्यूब्यूल बिकॉज इट इज ऑफ लेस इंपॉर्टेंस. अब मूविंग फॉरवर्ड, अगर आप देखें दिस इज योर प्रॉक्सिमल कॉन्वेक्टिव ट्यूब्यूल, तो इसमें से सोडियम 65% ऑफ इट इज रीअब्सॉर्ब. वाटर भी वाटर के साथ ही सोडियम मोस्टली आ रहा होता है, या अगर चलो ट्रांसपोर्टर भी है लेकिन जितना सोडियम आएगा उतना ही वाटर भी अंदर आएगा. 65%. अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज 100% ऑफ देम आर रीअब्सॉर्ब और क्लोराइड 60% रीअब्सॉर्ब हो रहा है. अब बाकी और क्या क्या चीज़ें हैं उनकी भी बात कर लेते हैं. आई टोल यू कि प्लाज्मा प्रोटीन जो स्मॉलर देन एल्ब्यूमिन होते हैं, एग्जांपल इंसुलिन एंड हीमोग्लोबिन, वो भी दे हैव टू आल्सो बी रीअब्सॉर्ब. और उनका क्या मैकेनिज्म होता है रीअब्सॉर्प्शन का? वो पाइनोसाइटोसिस के हेल्प आउट से दे आर taken in and then they are catabolized into amino acid. amino acid रिलीज करते हैं और एक्सट्रीम केसेस में वो अमीनो एसिड ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है. सो दैट्स हाउ पीसीटी आल्सो टेक्स पार्ट इन ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है. अब उसके अलावा ये तो रीअब्जॉर्प्शन की बातें होगी और मैंने ये भी बता दिया कि इवन वेरी स्मॉल प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन जैसे लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन जिसमें इंसुलिन और हीमोग्लोबिन का मैंने एग्जांपल दिया, उनकी भी रीअब्जॉर्प्शन होगी. अब सारी रीअब्जॉर्प्शन होगी. अब एक्सक्रीशन की बात करते हैं, सिक्रीशन की, ठीक है. सिक्रीशन क्या क्या सिक्रीट होता है? प्रोटॉन सिक्रीट हो रहा है, उसका पूरा हमने पढ़ लिया है. एंड देन इवन द ऑर्गेनिक एसिड्स एंड बेसिस देर आल्सो
secreted from interstitium to the tubule, right? Because in they have to be removed from the body. लेकिन ये प्रोटॉन से रिसाइक्लेशन हो गई थी इसकी. What are the natural substances that are secreted? So you have bile salts, oxalates, urates, catecholamines and their metabolites, epinephrine and norepinephrine and dopamine. And what is the marker for catecholamines and catecholamine breakdown? इसका marker है VMA. What is VMA? It is valinyl mandelic acid. So valinyl mandelic acid is a marker for your catecholamines. Catecholamines में क्या क्या आ रहा है? Epinephrine, norepinephrine और dopamine. तो तभी जो pheocytochroma है, pheochromocytoma, इसमें क्या होता है? There are massive amounts of VMA in urine. What is VMA? Valinyl mandelic acid. Valinyl mandelic acid urine में इसलिए इतना ज़्यादा आता है क्योंकि pheocytochroma में what happens is that there is excessive production of the catecholamines और उनका breakdown होगा, VMA produce होगा, urine में VMA बहुत ज़्यादा होगा. So this is something that you need to know. इसके अलावा pH भी secrete होता है, but this is not an endogenous substance. This is exogenous, which is synthetically made and added into the body. And this is a gold standard for RBF, which is renal blood flow. फिर toxins or drugs like penicillins. अच्छा penicillins का क्या था पुराने ज़माने में? अब तो खैर we have a new field of biomedical engineering and then biotechnology. लेकिन पुराने ज़माने में जो drugs थे they were huge अपने ज़माने के लिए. लेकिन अब the science has progressed so much. So in older days penicillin इसकी half life बहुत कम थी and it wasn't very long acting drug. It would be excreted in the from the kidneys. फिर इसके साथ the scientists started giving probenecid. Probenecid क्या करता था? This would block all those ये जो पीछे अगर आप देखें so there were these secretory proteins थे ना इधर लगे हुए अभी I cannot locate them but they were there. तो ये उन्हें ब्लॉक कर देता था ताकि सिक्रीशन कम हो जाए. हाँ इन्हें ब्लॉक करता था प्रोबेनिसेट, ठीक है, ताकि एक्टिव सिक्रीशन ना हो पेनिसिलिन की और उसकी हाफ लाइफ ज़्यादा मेंटेन रहे और वो ज़्यादा देर बॉडी में रहे, ठीक है. ओके, दैट ऑल इज डन. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, हमने सिक्रीशन की भी थोड़ी सी बात कर ली है, राइट. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट तीन और चीजें रह गई थी जिनकी हमने रीअब्जॉर्प्शन में अभी तक डिस्कशन नहीं किया. फाइनली उनकी बात होने वाली है. यू मे बी वंडरिंग सोडियम की तो बहुत बात होगी, यस, बट लेट मी लाइक कोरिलेट थिंग्स. अब फॉस्फेट की रीअब्जॉर्प्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. फॉस्फेट भी रीअब्जॉर्ब होता है. अब यू मे बी वंडरिंग ओके, अच्छा फॉस्फेट भी रिअब्सॉर्ब होता है. हाँ फॉस्फेट भी रिअब्सॉर्ब हो रहा था इन नॉर्मल अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस. लेकिन देयर इज दिस हार्मोन कॉल्ड पैराथायरॉइड हार्मोन. पैराथायरॉइड हार्मोन यू कैन आल्सो remember it as phosphate thrashing hormone. What does it do? It thrashes phosphate out. तो normally phosphate reabsorb हो रहा होता है, लेकिन ये जो है ये इसको कैंसिल आउट करता है, इसकी reabsorption को कैंसिल आउट करता है ताकि phosphate reabsorb ना हो. ये इसे थ्रैश कर होता है बॉडी से. तो पैराथायरॉइड, इफ यू कैन रिकॉल, आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड अ लेक्चर ऑन पैराथायरॉइड. ये कब रिलीज होता है? ये तब रिलीज होता है जब बॉडी के कैल्शियम लेवल्स कम होते हैं. फिर ये क्या करता है? ये ब्लड में आता है, ये ब्लड में जाकर बॉडी के कैल्शियम लेवल्स को इंक्रीज करता है. किस तरह? पहले तो ये बोन रिजॉर्प्शन करता था ना, बोन की रिजॉर्प्शन से जितना भी मतलब बोन डिजॉल्व होगी, जितना भी कैल्शियम होगा वो ब्लड में आएगा, कैल्शियम विल इंक्रीज. दूसरा ये क्या करता था? वेरी इंपॉर्टेंट, ये विटामिन डी को एक्टिवेट कर रहा था जिससे वो एक्टिवेटेड विटामिन डी गट में जाएगा और वहां जाकर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को एनहांस करेगा. तीसरा ये एक कोई भी चीज कर रहा था विच वॉज के बोन, ये जो कैल्शियम है ना उसकी रीअब्जॉर्प्शन को एनहांस कर रहा था. मतलब अब लेकिन ये प्रॉक्सिमल कॉर्नियल ट्यूब्यूल में नहीं होगा, ये होगा डिस्टल कॉर्नियल ट्यूब्यूल में. ये कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को एनहांस कर रहा था डिस्टल कॉर्नियल ट्यूब्यूल में. ये पैराथायरॉइड की बात हो रही है. और इसका चौथा फंक्शन क्या है? नाउ वी नो इट आल्सो ब्लॉक्स फॉस्फेट फ्रॉम बीइंग एब्जॉर्ब. तो ये फॉस्फेट को अंदर आने नहीं देता, इसकी रीअब्जॉर्प्शन को कैंसिल आउट करता है, ठीक है. सो पैराथायरॉइड हार्मोन इट डजंट लेट फॉस्फेट टू बी reabsorbed, therefore decreases serum phosphate level. And what does it do? Parathyroid का mainly we know that it reabsorbs calcium, blood की calcium levels को normal करता है. Other than that it also एक्टिवेट्स विटामिन डी. और जो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम हो रही है किधर हो रही है? डिस्टल कॉर्नियल ट्यूब्यूल में, ठीक है, डिस्टल कॉर्नियल ट्यूब्यूल में हो रही है, ठीक है. एंड देन मूविंग फॉरवर्ड तो ये हमें फंक्शंस पता चल गए, चार फंक्शंस ऑफ फॉस्फेट दैट यू कैन रिकॉल बार बार, ठीक है. अब उसके बाद सोडियम रीअब्जॉर्प्शन. अच्छा सोडियम रीअब्जॉर्प्शन की बात ये है कि एंजियोटेंसिन 2 या एंजियोटेंसिन 2 की बात है. इसमें ये है कि एंजियोटेंसिन 2 का हमें ये पता है कि हाँ ये वेसोकंस्ट्रक्टर है. पहले एंजियोटेंसिनोजेन होता है, फिर दिस गेट्स कन्वर्टेड बाय रेनिन इनटू एंजियोटेंसिन 1 और फिर एंजियोटेंसिन 1 गेट्स कन्वर्टेड बाय एज फ्रॉम लंग्स टू एंजियोटेंसिन 2. और ये एंजियोटेंसिन 2 हमें एज अ वेसोकंस्ट्रक्टर पता है, ठीक है. लेकिन इसके दो और काम है. एक तो ये एल्डोस्टेरोन को रिलीज करता है, ठीक है, एल्डोस्टेरोन रिलीज हो गया ना.
एल्डोस्टेरोन हमारे डिस्टल कॉर्नियल ट्यूब्यूल में एक्ट करता है और वहां जाकर सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप की एक्टिविटी को एनहांस करता है, ग्रेडियंट बढ़ा और ज्यादा से ज्यादा सोडियम रीअब्सॉर्ब होगा। खैर ये तो डिस्टल कॉर्नियल ट्यूब्यूल का हो गया ना, बट राइट नाउ वी आर प्राइमरीली फोकस ऑन द प्रॉक्सिमल कॉर्नियल ट्यूब्यूल। तो प्रॉक्सिमल कॉर्नियल ट्यूब्यूल में क्या करता है एंजियोटेंसिन 2, ये सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन को एनहांस करता है, ज्यादा से ज्यादा सोडियम रीअब्सॉर्ब हो, ठीक है। तो फॉस्फेट क्या करा था प्रॉक्सिमल कॉर्नियल ट्यूब्यूल में, ये सीरम के एब्जॉर्प्शन को रीअब्सॉर्प्शन को कैंसिल आउट करता है कि रीअब्सॉर्ब ना हो। कैल्शियम के जो रीअब्सॉर्प्शन बढ़ा रहा है वो डिस्टल कॉर्नियल ट्यूब्यूल में, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट एंजियोटेंसिन 2, ये प्रॉक्सिमल कॉर्नियल ट्यूब्यूल में क्या कर रहा है सोडियम की रिअब्सॉर्प्शन को बढ़ा रहा है। डिस्टल कॉर्नियल ट्यूब्यूल में क्या कर रहा है, इट आल्सो सिक्रीट्स एल्डोस्टेरोन और वेसोकंस्ट्रिक्टर भी है, तो एल्डोस्टेरोन जो है वो डिस्टल कॉर्नियल ट्यूब्यूल में जाकर एक्ट करेगा। अब दूसरा क्या है, जो हमारा प्रॉक्सिमल कॉर्नियल ट्यूब्यूल है ना, इसके अंदर ही वो और हार्मोन होता है अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज, जो कि विटामिन डी इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है ना, तो उसको एक्टिवेट करता है। तो वो हमारे प्रॉक्सिमल कॉर्नियल ट्यूब्यूल में ही होता है प्रेजेंट। फिर ये जो विटामिन डी है एक्टिवेटेड, ये जाएगा गट में और गट में जाकर ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, ठीक है। और इससे कौन स्टिमुलेट करता है इसको, इसकी स्टिमुलेशन के लिए यू नीड पैराथायरॉइड, ठीक है। इसकी स्टिमुलेशन के लिए भी यू नीड पैराथायरॉइड, तभी मैं बोली थी पैराथायरॉइड इससे भी एक्टिवेट करता है, क्योंकि इस हार्मोन की, ये जो किडनी में ये हार्मोन है, इसकी स्टिमुलेशन के लिए पैराथायरॉइड आपको चाहिए। और पैराथायरॉइड कब रिलीज होता है, जब बॉडी में कैल्शियम लो होता है, तो डिटेक्ट होता है पैराथायरॉइड। पैराथायरॉइड हार्मोन जो ग्लैंड्स है वो सेंसर्स भी हैं, तो उन्होंने डिटेक्ट किया कि कैल्शियम लेवल लो है, फिर इन्होंने रिलीज किया पैराथायरॉइड हार्मोन। पैराथायरॉइड हार्मोन अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज पर इसको एक्टिवेट करेगा, और ये जाकर आपके विटामिन डी को एक्टिवेट करेगा, विटामिन डी गट में जाकर कैल्शियम को अब्सॉर्ब करेगा और कैल्शियम लेवल्स विल बी मेंटेन। सो यस, दैट्स अबाउट इट।